Hey, hello guys. Very good evening to each one of you. So I welcome you all here to my session today. So I just hope you all are doing great, 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 taking care of your family members and everyone at your place. So just let me know right away in the chat box for how you guys are doing today. ठीक है जल्दी से मुझे बता दो कि कैसे हो आप लोग चैट में तब तक के लिए आई एम गोना गिव यू ऑल अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ मी so that the ones who don't know me well they will get to know about me. ठीक है so my name is Smriti Singh. I have done B.Ed in English and Civics. मैंने English and Civics में B.Ed किया हुआ है. I have experience of for more than 4 years in teaching. So initially I taught at an offline platform and then I moved towards online teaching. So offline में मैंने 3 years and few months पढ़ाया है and फिर मैंने switch कर लिया online में. So right now I'm working at an academy जहाँ पे मैं I started taking sessions of English. So right now, what I'm gonna tell you is just have an Academy app in your phone. आप अपने phone में जल्दी से an Academy app ले लो because I'll be conducting so many lots of quizzes जहाँ पे you will be needing to have the app in your phone. Then only you're gonna attend the quizzes, right? तभी आप quizzes attend कर पाओगे. So the quizzes will be happening there, and also not only my quizzes, but there's so many lots of live classes are going on which are free that you can go there and you can watch only if you have an Academy app in your phone. अगर आपके phone में an Academy app है तभी you would be able to do that to watch the sessions, live sessions happening there on the platform. So not only sessions are happening, but there are so many things that are happening there you might not be aware of. So here I am gonna make you aware of those things. So live classes तो मिल ही रहे हैं, live classes तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, that's not a problem. उसके साथ साथ जब टीचर्स वहाँ पे क्लासेस ले रहे हैं तो क्या मैम वहाँ पे क्विजेस हो रहे हैं? हाँ हो रहे हैं. क्विजेस बिल्कुल हो रहे हैं जहाँ पे आपको लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड भी देखने को मिल रहे हैं. लाइव पोल्स मतलब वहाँ पे आप आंसर करोगे और आपका जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो आपके लीडर बोर्ड पे आ जाता है, राइट? जिसके बेसिस पे यू आर एबल टू फिगर आउट कि वेयर यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ, यू एंड योर टीचर एज वेल, कि मैंने जो पढ़ाया क्या मेरे बच्चों को समझ में आया कि नहीं. तो टीचर ऑल्सो गेट्स टू नो अबाउट इट कि बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, एंड यू ऑल्सो गेट टू नो अबाउट कि वट एवर यू हैव परफॉर्म वेदर दैट इज अप टू द मार्क और नॉट, और वेदर यू नीड टू वर्क मोर ऑन दैट और वॉट. ठीक है, सो ये आपको हेल्प करता है लीडर बोर्ड. नाउ नेक्स्ट वन इज लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस. तो नाउ वट एवर सेशंस यू आर अटेंडिंग, जो भी आप सेशंस दे रहे हो, तो यू आर गोना हैव डाउट्स रिलेटेड टू द topic or subtopic, right? So write down those doubts somewhere because an academy has live doubt solving sessions also where you'll be going with your doubts and you will be putting the doubts to the educator and educator will receive and resolving them. Okay, now next comes live interaction. Now live interaction तो मैम it's so enjoyable, right? जहाँ पे आपके टीचर जो है वो आपसे interact कर रहे हैं, you are interacting with the teacher and you are enjoying it a lot. बिकॉज अगर टीचर इंटरेक्ट नहीं करेंगे, बच्चे टीचर से बातें नहीं करेंगे तो कैसे मजा आएगा पढ़ने में, राइट? सो इंटरेक्शन इज ऑल्सो देयर. सो गो and have the interaction as much as you all can do that because teacher really love that. Okay, now next one is weekly test series. अब weekly test series जो है क्या वो मिल रहा है कि नहीं? हाँ, वीक में आपको weekly basis पे आपको test series भी मिल रहे हैं जहाँ पे you have to perform और वहाँ पे आपको उसके बेसिस पे पता चलता है कि वट एवर यू हैव परफॉर्म वो था कि नहीं सही था कि नहीं सही था. तो वीकली वीकली आपको देखा जा रहा है वीकली बेसिस पे कि आपके जो है आप जो भी परफॉर्म कर रहे हो वो है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है, और या अगर नहीं है तो आपको उसके लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए, राइट? नाउ हियर कम्स, like suppose you have the Unacademy app in your phone. Now you have started watching those free sessions on Unacademy app and suddenly you realize there is a teacher whose methods are like कि अब तो मेरे दिमाग में घुस गया, right? जो भी वो पढ़ा रहे हैं सीधे मेरे दिमाग में जा रहा है straight away. So what if you want to have more interaction with the teacher, you want to have like lots of quizzes from that teacher? What in that case you should get an academy subscription जिसको लेने पे आपको उस टीचर से आपको बहुत सारे इंटरेक्शन का मौका मिलेगा. यू विल बी गेटिंग lots of classes from that teacher and quizzes as well, right? और भी बहुत इंटरेक्शन का मौका मिलेगा. Now for that, अब सपोज यू हैव प्लान कि अब आई एम इन अ मूड टू गेट द सब्सक्रिप्शन. आपका मूड हो गया, आपने प्लान कर लिया कि मुझे सब्सक्रिप्शन तो चाहिए ही चाहिए, मुझे इनकी बातें बहुत समझ में आ रही है, राइट?
For that you need to figure out what is your need, for how many months you're gonna have the subscription, कितने महीने का आपको subscription चाहिए, that is the question, right? So there you need to decide upon that thing. So यहाँ पे देख लो, आपको बहुत सारे मंथली बेसिस पे आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहे हैं, लॉन्ग टर्म भी है, शॉर्ट टर्म भी है, तो आपको नाउ इट्स अप टू यू। ठीक है, आप ही तो देखोगे कि आपको क्या एक महीने में जो भी पढ़ाया जाएगा सब्सक्रिप्शन लेके, क्या वो सफिशिएंट है वो सारी चीजों को समझने के लिए। अगर नहीं है तो गो फॉर द लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन वेयर यू विल बी गिवन फ्रॉम बेसिक्स टिल फंडामेंटल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी क्लैरिटी आपको वहां पे मिल जाएगी, राइट? तो ये हो गया मंथ वाला। नाउ कम्स व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सक्रिप्शन देयर। अब वहां पे कितने तरह का सब्सक्रिप्शन है मैम, ये मुझे आप बता दो। नहीं पता होगा तो कैसे मैं कौन सा वाला सब्सक्रिप्शन लूंगी? सो यू नीड टू हैव द आइडिया अबाउट the kinds of subscription, right? So first of all I'm going to tell you about plus subscription here. पहले आपको मैं plus वाले के बारे में बता दूं कि plus subscription if you're going to have, what are the benefits you will be having उसमें, ठीक है? So one by one I'll be telling you. So first of all, you will be taught by India's well qualified, well experienced, topmost teachers from all over the India. They are teaching there on the platform. They will be teaching you, ठीक है? उनसे पढ़ने का आपको मौका मिल रहा है, जिसमें से बहुत सारे ऑथर्स भी हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, उन्होंने बहुत जगह पे पढ़ाया है, बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ाया है, ऑनलाइन भी बहुत एक्सपीरियंस है, ऐसे एडुकेटर्स आपको वहाँ पे पढ़ा रहे होंगे, ओके? दैट्स फॉर श्योर। नाउ नेक्स्ट कम्स इंटरेक्शन लाइव, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस। अब क्या वो जो वेल क्वालिफाइड जो टॉप मोस्ट एडुकेटर्स हैं उनसे आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है आपको लाइव क्लासेस में, जो आपको लगेगा कि टीचर मेरे सामने बैठे हैं एंड वी बोथ आर इंटरेक्टिंग, जैसे आपको क्लास में फील होता था। अभी तो आपके स्कूल्स बंद है, राइट? बट अब वो चीज आप ऑनलाइन में भी फील कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे लाइव क्लासेस हो रहे हैं, उसी एग्जैक्ट टाइम पे टीचर आ रहे हैं एंड दैट टीचर इज गेटिंग ऑनलाइन एंड देन यू गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विद द टीचर, राइट? तो वो भी आपको मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ नोट्स। अब ये स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिल रहा है कि नहीं? अब इफ एनी टीचर इज टीचिंग मी, क्या वो टीचर जो है स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ा रहा है कि नहीं, जो भी मेरे मेरे सिलेबस में है, वट एवर करिकुलम आई हैव, तो is that educator gonna cover everything, every single bit of it? Yes, yes, trust me, वो आपको पूरे structured course देंगे and PDF notes also will be provided to you, because that is very important for you, right, for revision purpose. Okay, so PDF notes will also be provided to you. Now next comes live quizzes and test. अब next आ रहा है live test and quizzes भी हो रहे हैं, जो आपको बहुत पसंद है। अब जो भी आपको concepts पढ़ाया जाएगा, हर एक concept में, हर एक टॉपिक एंड सब टॉपिक से रिलेटेड आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी करवाए जा रहे हैं, ठीक है? तो वो सारी चीजें आपको, ये सारे बेनिफिट्स जो है, वट एवर बेनिफिट्स आई टोल्ड यू राइट नाउ, दे आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। नाउ लेट्स कम टू द अदर साइड। नेक्स्ट वन इज आइकॉनिक, ठीक है? अब आइकॉनिक में मैम व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट वी आर गोना गेट? Whatever benefits I told you you're gonna get in plus subscriptions, they all are there in iconic as well. Iconic में भी आपको वो सारे subscription मिल रहे हैं जो आपको प्लस में मिल रहे हैं। तो मैम एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है यहाँ पे? आपको एक्स्ट्रा ये मिल रहा है पर्सनल कोच, आपको पर्सनल कोच मिल रहा है एक्स्ट्रा में, ठीक है? जहाँ पे दैट कोच विल बी गाइडिंग यू एवरीथिंग, दैट कोच विल टेल यू हाउ यू शुड प्लान योर स्टडीज, दैट कोच विल प्रोवाइड यू विथ एक्सपर्ट्स गाइडलाइंस। वहाँ पे आपको एक्सपर्ट के गाइडलाइन से आपको वो देंगे ला करके कि कैसे आपको क्या क्या गाइडलाइंस है जो आप फॉलो करोगे तो यू विल परफॉर्म वेल। ये सारी चीजें आपको लाके दे रहे हैं, राइट? और सिर्फ उतना ही नहीं, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग इन द टेस्ट, they will analyze it like how you have performed. If you have not performed well, so what are the things that need to be done, right? So that coach will be guiding you throughout the journey, so don't worry about it. These are the benefits you're going to get in iconic subscription. Okay, so now here, now the question arises, ma'am, what are the steps that we should follow to have the app in our phone, right? यहाँ पे let's go to the Play Store. Everybody has a phone nowadays. अभी सबके पास तो फोन होता ही होता है, हर किसी के हाथ में देखो तो मोबाइल फोन रहते हैं, और मोबाइल फोन में प्ले स्टोर तो होता ही होता है. So you need to go to the Play Store. There you'll be typing Unacademy. The moment you type Unacademy learning app comes up, right? Just have a look here. ऐसे वो आता है, जैसे ही आप टाइप करोगे ना, it will come up. So there you have to click. The moment you click there, you will be getting the option of installation. Installation का आपको option आ जाएगा right away, वहीं पे आप वहीं पे click कर दोगे, और जैसे ही you will click on it,
ऐप विल बी इंस्टॉल्ड इन योर फोन। ऐप जो है आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। नाउ ऐप तो आ गया, ना व्हाट नेक्स्ट, व्हाट शैल आई डू नेक्स्ट, राइट? नेक्स्ट यू नीड टू गो इनसाइड द ऐप। अब ऐप में जाओ, वहां पे यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट आर द थिंग्स देयर। यही तो करते हैं ना, जो भी आप हम लोग इंस्टॉल करते हैं फोन में, सबसे पहले देखते हैं, चलो देखो इसमें क्या है, क्या क्या चीजें, इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, उस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा। सो दैट एग्जैक्टली यू हैव टू डू हियर विद अन अकेडमी लर्निंग ऐप। You need to go inside there. First of all, you need to go to the manage goals there. Category wise it is given there. From there you need to select your category, for which category you want whatever subscription. So first of all, let's select kar liya. Next it will be asking you for what kind of subscription you want, आपको किस तरह का सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो मैम ने अभी बताया कि प्लस सब्सक्रिप्शन भी है, आइकॉनिक भी है। तो मान लो कि आपको प्लस वाला चाहिए, आप प्लस पे क्लिक कर दो, यहाँ पे जो दिख रहा है आपने प्लस पे क्लिक कर दिया। नाउ नेक्स्ट कम्स गेट सब्सक्रिप्शन का आपको ऑप्शन आ रहा है। वहां पे आप जैसे ही जाओगे तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन, उस पर आप क्लिक कर दो। जैसे ही आप क्लिक करोगे इट विल बी आस्किंग यू फॉर हाउ मेनी मंथ्स यू वांटेड, कितने मंथ्स का आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो आपको 1 महीने का भी होता है, 36 मंथ्स का भी होता है, 60 मंथ्स का भी होता है। सो फॉर हाउ मेनी मंथ्स यू वांट, राइट? सो दैट यू नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट। द मोमेंट यू सेलेक्ट दैट, it's time for you to do the payment, right? अब payment करने का time आ गया। So while you're doing the payment, if you apply my code, which is SMRITI10, you will be getting 10% discount on that. Doesn't matter for which category you want it. आपका category matter नहीं कर रहा है, whether you want it for NEET, whether you want it for UPSC, whether you want it for grade 7, किसी भी कैटेगरी के लिए आप वो पेमेंट कर रहे हो। इफ यू अप्लाई माई कोड विच इज SMRITI10, यू विल बी गेटिंग 10% ऑफ ऑन द पेमेंट। ओके, आप ये कोड याद रखना और ये अप्लाई कर देना। अन अकेडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लोगे, आप मेरा कोड अप्लाई करोगे तो आपको उतना डिस्काउंट मिल जाएगा। नाउ इट्स अबाउट माई चैनल। I've recently started my channel which is named as English Junior Pro on YouTube. YouTube पे मैंने अपना ये चैनल शुरू किया है, where I'll be teaching the students of category 6 to 8. 6 to 8 को मैं हर चीज पढ़ाने वाली हूँ, ग्रामर, लिटरेचर एंड एज वेल एज वोकेबुलरी। वोकेबुलरी भी आपको वहाँ पे पढ़ाने मैं पढ़ाऊंगी, जहाँ पे आई विल इंश्योर कि अब मेरे बच्चों के पास देयर इज अ स्टोर ऑफ वोकैब जो वो कभी भी यूज कर सकते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें होंगी। एंड यू विल ऑल्सो बी गेटिंग स्पेशल क्लासेस जहाँ पे वी विल बी चिट चैटिंग, वी विल बी रिजॉल्विंग डाउट्स। तो आप अपने डाउट्स लेके आना, आई विल रिजॉल्व देम। सो ऐसे सेशंस भी होने वाले हैं। सो प्लीज गो एंड टेल योर रिलेटिव्स, प्लीज टेल योर फ्रेंड्स, प्लीज टेल योर everyone in your family, whoever you meet, सबसे बोलो कि स्मृति मैम ने यहाँ पे अपने क्लासेस शुरू किए हैं, तो let's go subscribe to the channel and let's attend the sessions. If we like the sessions, let's hit the like button and share with everyone around us. Okay, so इसको spread करना है everywhere. Now today what are we gonna learn, right? तो सारे बच्चों ने मुझे बता दिया कि कैसे है कैसे है। सो जस्ट लेट मी हैव अ लुक हियर, किस किसने मुझे बताया कि आप कैसे हो। ओके ग्रेट, सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, वेरी गुड, एक्सीलेंट, दैट्स ग्रेट टू नो। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे लेसन के साथ। सो टुडे हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, ये सवाल तो सबके दिमाग में चल रहा है कि मैम आज पढ़ाने क्या वाली है ना? तो ये एक सीक्रेट है अभी मैम के पास, जो सीक्रेट मैम विल रिवील, बट अभी नहीं, अभी थोड़ा पेशेंस रखो, पेशेंस रखना है। तो यहाँ पे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है? Here it is written, if you have a choice to have a pet, what pet would you prefer to have? अगर आपको एक चॉइस मिलता है, जो आपके पास हमेशा है, अभी भी है, राइट? अभी भी आपके पास चॉइस है। तो इफ यू हैव अ चॉइस कि आप एक पेट रखो घर पे, सो व्हाट पेट वुड दैट बी? दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है? वो एक कैट होगी, एक डॉग होगा, दैट विल बी अ रैबिट, दैट विल बी अ बर्ड, व्हाट इज दैट? जस्ट थिंक अबाउट इन आंसर इन द चैट बॉक्स। आप सोचो और बताओ कि अगर आपको पेट रखने का मौका मिल रहा है तो आप कौन सा वाला पेट रखोगे? आपने देखा होगा, देयर मस्ट बी सम ऑफ योर फ्रेंड्स हु आर हैविंग पेट एट होम। किसी के पास डॉग है, किसी के पास छोटा सा पपी है, किसी के पास कैट है। कैट्स आर वेरी स्कैरी, राइट? आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ कैट्स। मुझे तो कैट से बहुत डर लगता है, उसके आइज से। तो आपको सोचना है कि कौन सा पेट जो है वो आपको बहुत क्यूट लगेगा, जिसका और सिर्फ रखना ही नहीं है, लेट मी टेल यू, रखना ही नहीं है, वेर यू बिलीव कि यू कैन टेक केयर ऑफ दैट पेट विथ फुल ऑफ लाइक care, responsibilities and everything that you believe.
अगर वो बिलीव है तो ही आप पेट रखोगे, राइट? क्योंकि अगर आप पेट रख रहे हो तो आप में ये सेंस होना चाहिए कि पेट को हम लोग देखभाल करें, देयर शुड बी अ हाउस फॉर दैट पेट, प्रॉपर फूड यू नीड टू गिव इट टू इट, राइट? सो ये सारी चीजें आपको सोच के आपको प्लान करना है पेट। तो ठीक है, अगर मेरे से पूछा जाए तो आई वुड लाइक टू हैव बर्ड्स। मुझे बर्ड्स बहुत पसंद है, आई जस्ट लव वॉचिंग देम। सो आई वुड लाइक टू हैव अ बर्ड फॉर माई सेल्फ। ठीक है, सो हियर आई एम राइटिंग माई आंसर, whatever bird is there, it has to be cute, like all birds I find cute. ठीक है, so I would like to have a bird in my at my place, ठीक है, जिसको देखना मुझे बहुत पसंद है birds को, I love watching birds। तो वैसे ही आप अपने अपने प्रेफरेंस भी आपको चैट में डालने हैं, सो डोंट फॉरगेट टू डू दैट, आपको करना है ये चीज, सो दैट आई विल बी अवेयर ऑफ कि हु ऑल आर देयर, द वंस हु आर माय स्टूडेंट्स, उनका प्रेफरेंस क्या है, कौन सा पेट उन्हें पसंद है, तो मुझे ये जानना है। सो यू मस्ट राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स, ठीक है? अच्छा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट एनिमल इज कंसिडर्ड ऑनेस्ट टूवर्ड्स इट्स मास्टर? ओके, कौन सा ऐसा एनिमल है जिसको माना जाता है कि वो बहुत ऑनेस्ट होते हैं, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं अपने मास्टर को लेके? व्हाट इज दैट एनिमल? इट्स वेरी इजी, राइट? बहुत ही इजी पीजी आंसर है इसका, तो आप जल्दी से सोच के मुझे चैट में लिख के दे दो कि कौन सा ऐसा एनिमल है जिसको हम लोग उसी बात के लिए जानते हैं, उसी बात के लिए वो फेमस है, वो फैक्ट है उस एनिमल के बारे में कि वो जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं टूवर्ड्स इट्स मास्टर, अपने मास्टर को लेके। जो उसको मास्टर, हु इज द मास्टर इज द वन हु इज टेकिंग केयर ऑफ इट, राइट? जो हर देखभाल कर रहा है, एंड ऑल्सो दैट एनिमल इज टेकिंग केयर ऑफ द मास्टर, राइट? तो वो मास्टर को लेके एनिमल जो है, वो एनिमल, दैट स्पेसिफिक एनिमल इज वेरी वेरी ऑनेस्ट टूवर्ड्स हिज मास्टर, ठीक है? हु इज दैट एनिमल? Okay, now here I am going to write the answer for this question, that is a dog। कि वो जो होते हैं डॉग्स, जो होते हैं, दे आर वेरी वेरी ऑनेस्ट, दे आर वेरी लॉयल टुवर्ड्स द मास्टर। ओके, तो इसीलिए उन्हें हम लोग देखते होंगे कि गार्ड जो होता है, जो डॉग्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे से गार्डिंग करते हैं, जिनके पास भी होते हैं उनके घर का वो बहुत अच्छे से गार्ड करते हैं, राइट? दैट इज वाई दैट इज द एनिमल, डॉग इज द एनिमल दैट इज वेरी फेथफुल, दैट इज वेरी लॉयल टुवर्ड्स द मास्टर हु इज टेकिंग केयर ऑफ इट, राइट? ओके, so here are the few facts about dogs। यहाँ पे मैंने कुछ facts लिखे हैं, because whenever you are learning about something, you need to have lots of information about it, right? तो अभी हमने जाना dogs के बारे में, अभी हम लोग dogs के बारे में पढ़ रहे थे कि dogs जो होते हैं they are very loyal। That was one of the facts about dogs, वो एक fact था dog के बारे में। So there are many facts about dogs। So अभी हम लोग डॉग्स के बारे में जो है बहुत सारे फैक्ट्स जानेंगे, ठीक है? सो 5 फैक्ट्स आई हैव रिटन हियर, और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, वो ज्यादा हो जाता, यू विल बी ओवरलोडेड, इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 फैक्ट्स लिखे हुए हैं। सो वन बाय वन आई विल रीड इट आउट टू यू एंड विल मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, सो फर्स्ट फैक्ट अबाउट डॉग इज दे हैव अ सेंस ऑफ टाइम। उनके पास टाइम का बहुत सेंस होता है, सो यू कैन ट्रेन देम, यू नो, डॉग्स आर एवर रेडी टू बी ट्रेन्ड। आप अगर उनको प्रॉपर कंडीशन करो टाइम को लेकर के, तो दे विल बी ट्रेन, दे विल बी कंडीशन, वो कंडीशन हो जाते हैं एंड दे कीप ट्रैक ऑफ टाइम। सो फॉर एग्जाम्पल, if there is a pet of you which is a dog, and that dog is with you 24/7 and continuously that dog is watching you, आपको वो continuously देख रहा है, आप क्या क्या हरकतें किस टाइम पे कर रहे हो, that dog starts keeping track of the time of you when you do what, right? तो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू एवरी डे इन द मॉर्निंग इफ यू गो फॉर अ वॉक, अगर आप सुबह में जो भी टाइमिंग आपका फिक्स्ड है, आप उस टाइम पे अगर आप वॉक पे जाते हो एंड दैट टाइम इज फिक्स्ड, ओके, अगर वो टाइमिंग आपका फिक्स्ड है, तो वो डॉग को पहले ही सुबह में पता चल जाएगा कि नाउ, अभी जो आने वाले वक्त में 5 मिनट में 10 मिनट में यू विल बी गोइंग फॉर अ वॉक। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल सेंस ऑफ टाइम। सो डॉग्स हैव दैट इफ यू कंडीशन अ डॉग लाइक दैट। अगर आप डॉग्स को वैसे कंडीशन करोगे तो डॉग्स जो होते हैं वो टाइम का
बहुत सेंस होता है उनको, वो पहले फ्यूचर का सब कुछ, आप जो हरकतें डेली बेसिस पे कर रहे हो उनको पहले पता चल जाएगा कि अभी आप वॉक पे जाने वाले हो, अभी आप ये करने वाले हो, अभी आप ये करने वाले हो, ठीक है। तो उनको टाइम का बहुत सेंस होता है। Now, the next fact about a dog is dogs are as smart as a 2-year-old kid, you can say. ठीक है। तो यहाँ पे डॉग्स जो होते हैं टाइम का सेंस तो होता ही है, डॉग्स इतने स्मार्ट होते हैं कि एक जो 2 साल का बच्चा होता है ना, उसके इतना डॉग्स के पास दिमाग होते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट। ओके, स्मार्ट इन द सेंस कि वॉट एवर हरकतें, जो भी एक्टिविटीज जो हैं, जो भी एक्टिविटीज ये 2 साल के बच्चे करते हैं ना, वैसे सारी हरकतें, सारे सोच उनके जो होते हैं डॉग्स के, वो 2 साल के बच्चे की तरह होते हैं। तो 2 साल का बच्चा भी काफी स्मार्ट होता है, राइट? तो उतनी स्मार्टनेस डॉग्स में होती है। ओके, नाउ द थर्ड फैक्ट अबाउट इट इज, ये तो एकदम से ही वाला शॉकिंग है, डॉग्स गेट जेलस। अब आप लोगों में से कौन कौन जेलस होता है और आप लोग कब जेलस होते हैं ये मुझे बता दो। आप लोग, ऐसा मोमेंट भी आता है, देयर आर मोमेंट्स इन योर लाइफ एंड यू गेट जेलस, okay, for a positive reason, for a negative reason, it could be both, right? तो आपके लाइफ में वो मोमेंट कब होता है जब आप जेलस होते हो? सो लेट मी गेस, आपके लाइफ में ऐसा ऐसा मोमेंट कब होता होगा जब, फॉर एग्जाम्पल, द पर्सन हु लव्स यू द मोस्ट, आपके लाइफ में जो सबसे ज्यादा आपको प्यार करने वाले इंसान होते हैं, फॉर एग्जाम्पल योर मदर। इफ योर मदर लव्स यू द मोस्ट, अगर आपकी मम्मी बहुत प्यार करती है आपसे, और देयर इज अ डे व्हेन योर मदर कॉल्स अ चाइल्ड, एक, चाहे मान लो कि आपका फ्रेंड ही है, ठीक है, आपके फ्रेंड को अ, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है, बहुत ज्यादा उस पे ज्यादा ध्यान देने लगती है, ज्यादा, अगर वो आपके घर आ रहा है तो आपसे ज्यादा ध्यान आपकी मम्मी उसको दे रही है, आपके फ्रेंड को दे रही है, बीच बीच में खाने पूछ रही है, ज्यादा आपसे नहीं पूछ रही बट उससे पूछ रही है, तो देर आर टाइम्स व्हेन यू स्टार्ट माइंडिंग अबाउट इट, राइट? तो वो जो माइंड करना होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल जेलस होना, ठीक है। तो ये वाला चीज जो होता है ना, जेलेसी, डॉग्स में भी होते हैं, क्योंकि अगर आप एक बार आप रख के देखो, ठीक है, जस्ट हैव अ डॉग एंड ये सारी चीजें आप नोटिस करोगे, ये सारे फैक्ट्स अबाउट अ डॉग, ठीक है। आप एक डॉग रखो और जब आप उसके बहुत क्लोज हो जाओगे, एंड एक बार ऐसा होता है कि आपका एक कोई फ्रेंड आता है, या कोई, मान लो कोई दूसरा डॉग लेके आप आते हैं, मान लो, इट्स अ बेटर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप एक दूसरा डॉग लाते हो और आप अपने वाले पहले वाले डॉग से ज्यादा उस डॉग को इम्पोर्टेंस दोगे, तो वो पहले वाला डॉग जो है वो बहुत जेलस हो जाएगा। उसकी आप हरकतें देखोगे तो वो ऐसा लगेगा कि वो माइंड कर रहा है, ठीक है, उसको ये पसंद नहीं आ रहा कि आप उससे ज्यादा किसी दूसरे डॉग को इम्पोर्टेंस दो। तो ये वाला जो है, ये भी, दिस इज वन ऑफ द फैक्ट्स अबाउट डॉग्स, ठीक है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा हमें। अब नेक्स्ट वी आर गोना डील विद द नेक्स्ट फैक्ट। So next fact about dogs is all puppies are born deaf. तो puppies कौन होते हैं? Babies, right? Babies of dogs. ये जो puppies होते हैं, जो babies of dogs है, ये जो जब जन्म लेते हैं ना, when they are born, उस टाइम पे they are deaf. Completely वो deaf होते हैं. They can't hear anything. उस टाइम पे उनके पास थोड़ा सा भी वो सुन नहीं सकते, ठीक है। और जैसे जैसे ही they grow up, they start listening. जैसे ही वो बड़े होते हैं ना, ठीक है, तो उनको वो आ जाता है, वो सुन सकते हैं, बट बचपन में जब जब उनका बर्थ होता है तभी वो नहीं सुन सकते, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द फैक्ट्स अबाउट डॉग्स। नाउ द लास्ट फैक्ट अबाउट डॉग्स इज 45% डॉग्स स्लीप इन देयर ओनर्स बेड। तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस है, आप सबने बहुत बार देखा होगा कि डॉग्स का ये एक हैबिट होता है कि हमेशा वो अपने ओनर मीन्स व्हाट, द मास्टर हु इज टेकिंग केयर ऑफ द डॉग, ओके। तो आप मान लो, इफ यू आर द ओनर ऑफ द डॉग, यू विल रियलाइज इन फ्यूचर कि वो डॉग जो है बार बार आपके बेड में आके ही सोएगा, ठीक है, वो किसी और के बेड में जाके नहीं सो सकता, ठीक है। तो उसे इतनी सेंस होती है कि दिस इज द बेड ऑफ माई ओनर, तो आई कैन ऑल्सो स्लीप हियर ऑन दिस बेड, ओके। सो 45% डॉग्स ऐसे होते हैं, ऑलमोस्ट 50%, राइट? तो 45% डॉग्स जो होते हैं उन्हें ये सेंस होता है कि ये मेरे ओनर का बेड है, और क्योंकि ये मेरे ओनर का बेड है, दिस इज माई बेड ऑल्सो इक्वली, तो आई कैन ऑल्सो स्लीप हियर, माई ओनर इज नॉट गोइंग टू माइंड इट,
Okay, so these are the facts about dogs, and please keep it in your head. Maybe in future I'll frame a question in while I'll be conducting quizzes. वहां पे मैं ऐसे questions डालूंगी जहाँ पे हो सकता है कि मैं I'll ask you uh, maybe two facts, three facts, four facts, or all the five facts about dogs. So you have to remember these facts about dogs. Okay. अब ये सवाल चल रहा होगा कि मैम आज इतना डॉग्स डॉग्स क्यों कर रही है, ऐसा क्या होने वाला है आज लेसन में, क्या हम लोग सिर्फ डॉग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्या है ये, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्या यहाँ पे मैम डॉग्स डॉग्स कर रही है। यस, हम लोग आज डॉग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं अभी जानेंगे, ठीक है। बट उससे पहले मैं ये बता दूं कि फैक्ट्स फैक्ट्स ऑलवेज मेक्स यू स्मार्टर, और यू कैन से द स्मार्टेस्ट। जब भी आप फैक्ट्स, आपको जितना पता होगा ना, और जब भी आप कुछ ऐसा बोलोगे यू विल साउंड वेरी स्मार्ट। ठीक है, तो जब भी कोई आपको फैक्ट्स आपको जानने को मिल रहा है तो हमेशा यू शुड स्टोर इट इन योर हेड, हमेशा अपने दिमाग में उसको बिठा लो, और ये आपको बहुत स्मार्ट साउंड कराता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। अब यहाँ पे हाउ द डॉग, दैट इज द डॉग वी आर टॉकिंग अबाउट, हाउ दैट डॉग फाउंड हिमसेल्फ, वो खुद को एक मास्टर कैसे, वो खुद के लिए एक मास्टर ढूंढा, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे ढूंढा, दिस इज द डॉग वी आर टॉकिंग अबाउट, यही वो डॉग है। अब ये डॉग जो है, मान लो ये एक मास्टर के सर्च में है। ठीक है, इसको एक मास्टर चाहिए, और मास्टर चाहिए तो अब ये जिद पे अड़ गया कि मुझे तो अब मास्टर चाहिए ही चाहिए, आई एम नॉट एबल टू फाइंड अ परफेक्ट मास्टर फॉर माई सेल्फ, और यू कैन से आई एम नॉट एबल टू फाइंड अ स्ट्रॉन्ग मास्टर फॉर माई सेल्फ। ठीक है, सो ही इज ऑन दैट जर्नी, मतलब ये डॉग जो है उस जर्नी पे अब निकल गया है कि मैं अब न्यू मास्टर जो है, जो मेरे लिए अच्छा होगा, उसको मैं ढूंढ के ही रहूंगा। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द टाइटल ऑफ द स्टोरी वी आर गना डिस्कस नाउ। अभी जो होगा, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टोरी, दिस इज द टाइटल ऑफ दैट स्टोरी। ठीक है, ओके, सो दिस इज द स्टोरी वी आर गना लर्न नाउ। दिस इज इन योर लिटरेचर बुक, सो गो find this story, और अभी पहले सेशन देख लो, and afterwards if you're gonna have any doubts related to this story you can come back to me and then we will learn, I will resolve your doubts, okay। So here the story begins, यहाँ पे story शुरू होती है। So here I'm gonna read the story out to you and definitely I'll give the explanation of it कि कैसे dogs कैसे that dog is on the journey of finding a master, and whether he is able to find a master or not, that we will get to know about. Okay, so here the story begins. It starts from here. Dogs were once their own masters. Okay, there was a time, once upon a time, there was a dog, like there were dogs that were the masters of their own, पहले वो खुद के खुद ही masters थे। Okay, and lived in the way wolves do, they used to live in the way nowadays wolves do। ठीक है, जैसे wolves आजकल रहते हैं ना, वैसे एक टाइम पे डॉग्स रहते थे, वो खुद के खुद ही मास्टर थे, देयर वाज नो मास्टर फॉर डॉग्स। ओके, सो हाउ wolves do, how wolves live in freedom, wolves live in freedom। आप wolves को देखोगे तो वो बहुत ही फ्री होके घूमते हैं, राइट। सो वैसे ही एक टाइम पे डॉग्स यूज्ड टू लिव। So now, until a dog was born who was ill pleased. अब यहाँ पे why ma'am has marked this ill pleased with red? There is a purpose behind it. Whatever words you find in red, they might be unfamiliar words for you. So that is why I have marked them in red, so that you can ask me कि ma'am इसका क्या मतलब? Definitely you're gonna ask me कि ma'am what does it mean, right? So there are hard words that I have marked in red. Okay, so I'll be telling you the meaning of those words definitely। So यहाँ पे बहुत पहले ऐसा टाइम था जब डॉग्स जो थे वो खुद के मास्टर थे, वो वुल्फ्स की तरह रहते थे। वुल्फ्स कैसे रहते हैं, दे आर कम्प्लीटली फ्री, दे रोम अराउंड, राइट। वो कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें कोई डर नहीं होता, राइट। सो अंटिल, वो तब तक डॉग्स जो थे तब तक वो खुद के मास्टर थे, जब तक कि एक डॉग ऐसा हुआ जो कि बहुत ही इल प्लीज्ड था। Now, what does this word mean? So, I am going to encircle this word and will tell you the meaning of this word. Ill pleased means what? Who will tell me the meaning of this word ill pleased? So, the ones who know the meaning of this word, you can
आंसर द क्वेश्चन हियर इन द चैट बॉक्स। आप चैट बॉक्स में बता दो कि मैम इल प्लीज का मतलब होता है ये और इल प्लीज का मतलब होता है वो। ठीक है, सो हियर आई एम टेलिंग यू द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। इल प्लीज्ड मीन्स अनहैप्पी। ओके, सो देयर वाज अ डॉग। सो एक ऐसा डॉग हुआ, एक ऐसा डॉग पैदा लिया जो कि बहुत ही इल प्लीज्ड था। किस चीज से इल प्लीज था, किस चीज से अनहैप्पी था? विथ द वे ऑफ लाइफ, द वे दे यूज टू लिव। जैसे वो रहते थे ना, उस चीज से वो खुश नहीं था। लाइक वुल्स, जैसे वुल्स रहते हैं, फ्री होके घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। सो ही वॉज नॉट हैप्पी विथ दैट वे ऑफ लाइफ। he wanted some other way of life, some better way of life. Okay, so यहाँ पे he was sick and tired of wandering. ठीक है, वो अनहैप्पी क्यों था? क्योंकि वो ऐसे वॉन्डर करते हुए, जैसे वुल्फ वॉन्डर कर रहे होते, घूम रहे होते, कहीं से कहीं जा रहे होते, उनका जहां मन करे, दे वॉन्डर इन फ्रीडम, राइट? वो फ्री होके कहीं पे भी वॉन्डर। वॉन्डर मीन्स व्हाट? वॉन्डर मीन्स वॉक। Okay, the meaning of the word wander is walk. How walk? How to walk? Walk aimlessly. जब आपके पास कोई एम नहीं है, बस आप घूम रहे हो, that is what we call wandering. Okay, so he was very sick and tired. वो बहुत थक चुका था ऐसे घूम घूम के, ऐसे लाइफ जीते जीते. Okay, wandering about by himself. वो खुद ऐसे घूम घूम के looking for food and being frightened. So they used to be frightened also because उनको दूसरे जानवर से बहुत ही खतरा था, राइट? लाइक बेयर, लायन, ये सारे एनिमल से उनको खतरा था। तो उसे ये लगा कि ये कैसा वे ऑफ लाइफ है जहाँ पे आप घूम रहे हो एमलेसली और फूड की तलाश में घूम रहे हो। यू आर गेटिंग स्केर्ड ऑफ अदर एनिमल्स लाइक लायंस, बेयर, ये सारे एनिमल से आप डर भी रहे हो। तो मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए जहाँ पे मैं डर के रहूं, खाना के लिए मैं इधर उधर घूमूं और बस ऐसे ही घूमता रहूं। आई डोंट वांट दिस लाइफ, आई एम फेड अप ऑफ इट। ठीक है, तो उस डॉग को ऐसा लगा, बिकॉज ही वॉज वेरी अनहैप्पी विद इट। उसे कुछ अपना लाइफ जो था वो बेटर करना था। ठीक है, फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन हिम। ठीक है, तो वो लोग जो फ्राइटेंड, वो लोग फ्राइटेंड रहते थे कि वो जो उनसे स्ट्रॉन्ग एनिमल्स है वो कहीं उन पे अटैक ना कर दे। तो ये सारे रीजंस जो हैं जिनकी वजह से वो बहुत ही अनहैप्पी था, बहुत ही इल प्लीज था कि वो घूम रहे हैं, फूड के सर्च में घूम रहे हैं, डर रहे हैं वैसे एनिमल से जो उनसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो ऐसा लाइफ मुझे नहीं चाहिए, आई वॉन्ट समथिंग बेटर देन दिस, ऐसा उस डॉग को लगा। तो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? सो ही थॉट इट ओवर। उसने ऐसा सोचा, इस बारे में बहुत सोचा, एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू was to become a servant of one. Become servant of whom? ठीक है, become servant of one who was stronger than anyone on this earth. अब इस earth पे जितने भी लोग, जितने भी animals जो भी रह रहे हैं ना, वो ऐसे एनिमल का या ऐसे इंसान का सर्वेंट बन जाए हु इज द स्ट्रोंगेस्ट ऑन दिस अर्थ, जो इस अर्थ पे जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रोंग हो, ताकि वो कभी भी फ्राइटेंड ना हो। ठीक है, कभी भी उसे फूड की तलाश में इधर उधर भटकना नहीं पड़े, राइट? तो सबसे ज्यादा स्ट्रोंगेस्ट जो होगा इस अर्थ पे, उसका उसे सर्वेंट बनना था उस डॉग को, ताकि उसे किसी से भी खतरा नहीं हो, किसी से भागने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, सो ही वॉन्टेड टू मेक हिज लाइफ बेटर। ठीक है, वो अपने लाइफ को बेटर करना चाह रहा था, ऐसे आदमी का या ऐसे एनिमल का सर्वेंट बन के, ऐसे उसके पास रह के जो सबसे ज्यादा इस दुनिया में, इस अर्थ पे स्ट्रांग हो, ताकि उसको बाकी किसी चीज का डर नहीं हो। ठीक है, सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? देन ही सेट आउट, वो फिर निकल गया। सेट आउट मीन्स वो निकल गया, टू फाइंड सच अ मास्टर। अब ऐसे मास्टर की तलाश में वो निकल गया, बस, जो कि सबसे ज्यादा, अब उसे ऐसा मास्टर चाहिए था हु वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन दिस अर्थ। So it was not an easy job, right? It was such a tough task to do, right? तो इसके लिए अब वो क्या करता, क्या क्या किया? So this is basically a story how that dog finds that master, that strongest master.
ठीक है। तो यहाँ पे उसी वो आइडिया आया कि अब मैं इस जर्नी पे निकलूंगा जहाँ पे आई हैव टू फाइंड सच अ मास्टर हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस अर्थ पे। ठीक है। सो ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड and he met a kinsman. Kinsman means what? Kinsman means relative. Old fashioned word for a relative. Kinsman is an old fashioned word for relative. ठीक है, so kinsman means relative. किन्समैन का मतलब होता है रिलेटिव। ओके, सो डॉग का एक ऐसा रिलेटिव मिल गया जब वो चल रहा था, ढूंढने निकल गया कि अब मुझे ढूंढना ही है ऐसे मास्टर को। सो व्हेन ही वाज ऑन हिज जर्नी, suddenly he met a kinsman, his relative, okay, a big wolf. So that relative was a big wolf. Okay, so wolves are considered to be relatives of dogs. Basically dogs are जो है, dogs जो होते हैं वो descendants हैं wolves के। ओके, ऐसा माना जाता है। सो इसीलिए कह सकते हैं कि वो डॉग जो है वुल्फ का रिलेटिव है। ठीक है, तो वहां पे चलते चलते ही मेट अ किन्समैन, अ रिलेटिव हु वाज अ बिग वुल्फ, हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फियर्स। ठीक है, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग था जितना कि ये वीक था। ओके, तो उसके लिए वो, उसे लगा कि नाउ अभी अभी मुझे ये मिल गया है, अभी मुझे ये जो, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। ठीक है, तो यहाँ पे what we were learning about the dog, that he walked and walked and he met a kinsman, a relative who was a big wolf, who was as strong as he was fierce. जितना ही वो खतरनाक था उतना ही वो strong था। ठीक है, वो वुल्फ जो था जिसको वो मिला, जिसको जिससे डॉग मिला, वो बहुत ही स्ट्रांग लगा देख के, और उतना ही वो देख के खतरनाक भी लगा, उतना ही ज्यादा उसे लगा कि मैं इसके साथ रह के बहुत ही सेफ रहूंगा। ठीक है, तो ये उसको लगा वहां पे। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि फियर्स का, आई एम राइटिंग द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, कि वो देख के बहुत ही, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। सो ही सीम टू बी aggressive. Okay, now then what happens next then? Where are you going, dog? The wolf asked. जो wolf मिला था ना, वो पूछता है कि where are you going, dog? उसने पूछा, जब उसने डॉग को देखा उसने सवाल पूछा, that was where are you going? जब उसने डॉग को देखा तो। ठीक है, सो हियर देन आंसर केम देयर, रिप्लाई केम टू हिम, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद। तो यहाँ पे मैं निकला हूँ, आई एम ऑन द जर्नी, जहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ जिसके साथ मैं सर्विस में रहूं, जिसका मैं सर्वेंट बन सकूं। ठीक है, सो हियर आई एम, सो उसने ऐसा दिखाया कि आई एम इन सर्च ऑफ अ जॉब, उसने ये बताया, ये इंटेंशन नहीं बताया कि आई एम इन सर्च ऑफ अ वेरी समवन वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये उसने इंटेंशन नहीं बताया उन्होंने, उसने ये बताया कि वो अभी निकला है इन सर्च ऑफ अ जॉब, ऑफ अ सर्वेंट। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस, वुड यू लाइक टू बी माय मास्टर वुल्फ? तो यहाँ पे डॉग ने पूछा, बिकॉज डॉग को वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज्यादा
स्ट्रॉन्ग लगा था वुल्फ, राइट। इसलिए उसने सोचा कि मैं इससे पूछ ही लेता हूँ कि आप मेरे मास्टर बनोगे क्या। ठीक है, तो उसने पूछा कि वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, क्या आप मेरे मास्टर बनोगे वुल्फ। डॉग ने ऐसा पूछा। ठीक है, देन व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ वुल्फ। वुल्फ रिप्लाइड, आई डोंट सी व्हाई नॉट, मुझे कोई रीजन नहीं आ रहा ना बोलने का, सो व्हाई नॉट, लेट्स बी टुगेदर। ठीक है, बन जाओ मेरे। ठीक है, आई डोंट माइंड इट। वुल्फ का ये रिप्लाई था। ठीक है, the wolf said, and this agreed upon, the two of them went on together, तो दोनों के दोनों अब साथ में निकल गए। ठीक है, तो dog became the servant of the wolf, right? So now wolf was the master of dog, क्योंकि डॉग को लगा था कि इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो ये लगा, तो वो मान गया कि ठीक है, यू कैन बिकम माई सर्वेंट, आई टेक केयर ऑफ यू। वुल्फ का ये जवाब था। तो डॉग जो है वो उसके साथ निकल गया। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, दे वॉक्ड, वो चलते गए एंड ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज। लिफ्टेड मतलब उठाना, उसने अपने नोज को ऐसे उठाया, लिफ्ट किया, एंड स्निफ्ड, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. अचानक से क्या हुआ, कुछ हुआ वुल्फ को, वो जो है उसने अपने नोज को ऐसे लिफ्ट किया, देन ही स्निफ्ड। उसने कुछ, स्निफ मतलब क्या होता है, कुछ सूंघना। ठीक है, व्हेन यू स्निफ समथिंग, तो उसने जो है सूंघा कुछ, पहले नोज को उठाया फिर कुछ सूंघा, देन ही डार्टेड क्विकली ऑफ। डार्टेड मीन्स मूव क्विकली। ओके, तो वहां से ही डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ एंड इनटू द बुशेस, फिर वो बुशेस में चला गया। बुशेस मीन्स व्हाट, श्रब्स। ठीक है, थिकेट्स, थिकेट्स मीन्स जो प्लांट्स की जो झाड़ियां होती है, दैट इज व्हाट वी कॉल बुशेस। तो वो बुशेस में, वो झाड़ी में घुस गया एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, फिर वो फॉरेस्ट में अंदर एकदम से चला गया, वहां से भाग के। ठीक है, अब उसके साथ क्या हुआ, व्हाट हैपेंड विद हिम, व्हाट डिड ही स्निफ, व्हाई डिड ही लिफ्टेड हिज नोज, व्हाई ही डार्टेड क्विकली ऑफ फ्रॉम देयर, क्यों ऐसा क्यों हुआ, अभी हम लोग जानेंगे। तो द डॉग वॉज मच सरप्राइज, ये देख के डॉग जो है ना वो बहुत ही सरप्राइज हो गया। वाई, बिकॉज उसे लगा था, व्हाट ही थॉट, दैट द वुल्फ इज वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा डॉग को लगा था। बट अभी इस चीज से वो बहुत सरप्राइज हुआ कि क्या हो गया, व्हाट हैपेंड टू हिम। तो यहाँ पे व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ऐसा डॉग ने पूछा, क्या हो गया है आपको, व्हाट हैज हैपेंड टू यू, what are you affected of, किस चीज से आप अफेक्ट हुए हो। ओके, ऐसा डॉग ने पूछा यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत सरप्राइज था इस एक्शन से जो अभी वुल्फ ने किया था। उसने जो स्निफ किया फिर वो वहां से भाग गया, इस चीज से वो बहुत सरप्राइज हुआ। तो उसने पूछा कि सोचा कि मैं पूछ ही लेता हूँ कि क्या चीज है ऐसे जो उन्हें अफेक्ट किया और वो यहाँ से चले गए। ठीक है, तो उसने पूछा, व्हाट्स कम ओवर यू। कम ओवर यू मीन्स व्हाट हैज अफेक्टेड यू, यहाँ पे व्हाट डिड अफेक्ट यू, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। ओके, सो उसके बाद क्या हुआ, व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो। और फिर उसने पूछा कि व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो, कांट यू सी, कांट यू सी देयर इज अ बेयर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस। और जब डॉग ने पूछा व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो, तो यहाँ पे उसने आंसर किया, कांट यू सी देयर इज अ बेयर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, हम दोनों को वो खा जाएगा। तुम्हें दिख नहीं रहा वहां पे बेयर है, बेयर आ रहा है, तो लेट्स गो अवे फ्रॉम हियर। ठीक है, तो ऐसा उसने बोला कि बेयर है और उसकी वजह से वो हो सकता है कि मुझे और तुम्हें दोनों को वो खा जाए, यू एंड मी बोथ, सो लेट्स गो फ्रॉम हियर। ठीक है, इसकी वजह से वो डरा था। वुल्फ जो है वो बेर को देख के एकदम से डर गया था, उसने स्निफ कर लिया, क्योंकि वो लोग स्निफ कर लेते हैं, सूंघ लेते हैं किसी भी एनिमल्स के अराइवल को। ठीक है, तो उसने सूंघ लिया था पहले ही कि कोई एनिमल आ रहा है और हो सकता है कि वो हमारे पे अटैक कर दे और हो सकता है कि वो हमें खा जाए, सो लेट्स गो फ्रॉम हियर। ठीक है, तो वो ऐसा बोला डॉग से। सीइंग दैट, ये देख करके, वुल्फ को फ्राइटेंड देख करके मतलब डरा हुआ देख करके, बेयर वॉज द बेयर वॉज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ, ये देख करके कि बेयर जो है वुल्फ से स्ट्रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि वुल्फ जो है वो बेयर से डर गया।
अब बेर से अगर वुल्फ डर गया तो बेर जो होगा वो बहुत ही स्ट्रांग होगा, तभी तो वो डर गया कि वो उसको खा भी सकता है। सो बेर इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर देन अ वुल्फ। ठीक है, तो ये देख करके जो है, अब डॉग ने क्या डिसाइड किया अभी हम लोग जानेंगे। द डॉग डिसाइडेड, यहाँ पे जो है ये डॉग ने डिसाइड किया टू टेक अप सर्विस विथ हिम। सर्विस विथ होम, किसके साथ सर्विस लेने को डिसाइड किया? अब वुल्फ से जो स्ट्रॉन्गर होगा उसके साथ सर्विस लेगा डेफिनेटली, बिकॉज ही इज ऑन द जर्नी ऑफ फाइंडिंग समवन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन दिस अर्थ। जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है उसके सर्च में वो निकला है, तो डेफिनेटली उसको जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग लगेगा उसके साथ वो सर्विस, उसको वो सर्विस देगा, राइट? तो यहाँ पे जब उसे लगा कि बेर इज स्ट्रॉन्गर देन अ वुल्फ, उसने डिसाइड किया कि अब जो है मैं वुल्फ को छोड़ के बेर के साथ जाऊंगा, बिकॉज बेर इज स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, उसने यहाँ पे वुल्फ को छोड़ दिया। ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर, बेर को वो पूछा टू बी हिज मास्टर। ठीक है, वुल्फ को छोड़ के ही आस्क्ड द बेयर टू बी हिज मास्टर, उसने बेर से पूछा कि आप मेरे मास्टर बन सकते हो क्या, ऐसा डॉग ने बेर से पूछा। ठीक है, देन व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ बेर, दैट वी विल गेट टू नो अबाउट हियर। द बेर अग्रीड, अग्रीड मतलब मान जाना, द बेर अग्रीड टू दिस रेडिली। ठीक है, तुरंत में, रेडली मतलब तुरंत में, एज इफ ही वाज रेडी फॉर दैट, मतलब कि इसके लिए वो रेडी ही था, इसीलिए बोला गया है कि द बेयर अग्रीड टू दिस रेडीली एंड सेड, और बोला, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज। हर्ड मीन्स व्हाट? ग्रुप ऑफ काउज। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं, बेयर ने बोला कि लेट्स गो मी एंड यू एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, ग्रुप ऑफ काउज को फाइंड करते हैं हम लोग कहीं पे जहां पे मिलेंगे। एंड आई विल किल अ काउ, मैं एक काउ को किल करूंगा, मारूंगा, एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर, फिर हम लोग अपने हिस्से को खा लेंगे। ठीक है, सो लेट्स गो फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज। काउस के हर्ड को हम लोग फाइंड आउट करते हैं कहाँ मिलेगा। जैसे ही मिलेगा मैं एक काउ को उसमें से किल कर दूंगा और हम लोग डिवाइड कर लेंगे और अपने अपने हिस्से को वी विल ईट। ठीक है, ऐसा बेर ने बोला। उसके बाद क्या हुआ, व्हाट वाज द रिप्लाई? सो दे वॉक्ड, उसके बाद जो है वो निकल गए वहां से। दे वॉक्ड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउज, फिर अचानक जल्दी ही उन्हें एक हर्ड ऑफ काउज दिखा, एक ग्रुप ऑफ काउस दिखा। जल्दी ही जैसे वो लोग वहां से निकले वैसे ही उन्हें हर्ड ऑफ काउस दिख गया। ठीक है, बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल, टेरिबल मीन्स हॉरिफिक, हॉरिफिक, हॉरिफिक मतलब हॉरर मूवीज आप लोग देखते हो, राइट? तो डराने वाला नॉइज, टेरिबल साउंड मीन्स हॉरिफिक साउंड, हॉरिफिक नॉइज। ठीक है, तो टेरिबल मतलब ये होता है। तो जैसे ही वो लोग निकले ना, तो काउ का हर्ड तो मिल गया, बट एज दे वर अबाउट टू कम अप, जैसे ही वो लोग वहां पहुंचने वाले थे, दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज, अचानक से उन्हें एक डरावना आवाज सुनाई दिया और उससे वो वहीं पे रुक गए। दे स्टॉप देयर। ठीक है, the cows were mooing loudly and running in a panic. ठीक है, फिर उन्होंने देखा कि काउस जो है वो मूव कर रहे हैं। मूव मीन्स व्हाट? मूव इज द साउंड ऑफ काउस। ठीक है, जब काउस जो होते हैं वो साउंड निकालते हैं, उस साउंड को हम लोग मूइंग बोलते हैं, राइट? तो वो अचानक से अपनी साउंड निकालने लगे, वो भी बहुत लाउडली, एंड रनिंग इन अ पैनिक। अब वो लोग पैनिक, पैनिक मीन्स व्हाट? सडन फियर, अचानक से उन्हें डर लग गया, सडन फियर। ठीक है, अनकंट्रोलेबल फियर, जो कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ऐसा डर जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट इज व्हाट वी कॉल पैनिक। तो जब काउ ने इतने लाउड साउंड किए एंड स्टार्टेड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस, अब जितने भी हर्ड वो जो थे काउस के, वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में वो लोग मूव करने लगे वहां से पैनिक में। ठीक है, डर में। किस चीज का वो डर था अभी हम लोग जानेंगे। अच्छा, अभी हम लोग नहीं जानेंगे क्योंकि
आज हमें इतना ही पढ़ना है. हाफ ऑफ द स्टोरी इज लेफ्ट, दैट आई विल बी डूइंग टुमारो. कल का वेट कर लो. अब ये किस चीज का पैनिक था, काउज वहां से क्यों इतना साउंड करने लगे वहां पे, वहां से भागने क्यों लगे इन डिफरेंट डायरेक्शंस, दैट इज अभी येट टू कम. ठीक है, सो दैट वी विल लर्न टुमारो इसके बारे में. तो आई होप वट एवर आई टॉट यू टूडे, वट एवर दिस पार्ट, हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ द स्टोरी आई टॉट यू टूडे, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. कि एक डॉग है, लेट्स रिकैपिचुलेट वंस. देयर इज अ डॉग, लाइक इनिशियली डॉग्स वर मास्टर्स ऑफ देयर ओन, वो खुद के मास्टर थे पहले. वो एकदम फ्री होकर घूमते थे कुछ भी फूड के सर्च में, राइट. बट अचानक से देयर वाज अ डॉग जिसे ये वे ऑफ लाइफ पसंद नहीं आया. सो दैट डॉग वांटेड अ बेटर लाइफ, सो ही वांटेड अ मास्टर फॉर हिमसेल्फ. उसको अपने लिए एक मास्टर चाहिए था. ठीक है, एंड दैट मास्टर हैज टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन दिस अर्थ. अब इस अर्थ पे जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, जिसको किसी से डर नहीं लगता, ऐसे मास्टर की तलाश में वो निकल गया वो डॉग, राइट. सडनली ही मेट his kinsman, his relative, and that was a big wolf. ठीक है, वो बड़ा सा वुल्फ था his relative. अब उससे वो वुल्फ ने पूछा कि where are you going, तो डॉग ने बोला कि आई एम इन सर्च ऑफ दिस, तो क्या आप मेरे मास्टर बनोगे. क्योंकि वो वुल्फ जो है वो उसको बहुत स्ट्रांग लगा था, बहुत ही गुस्से वाला लगा था, राइट. फियर्स लगा था, फियर्स मीन्स बहुत ही गुस्से वाला. तो उसको लगा कि नहीं, ही इज वेरी स्ट्रांग, तो आई शुड बी इन सर्विस विथ हिम. तो उसने पूछा, तो वुल्फ ने बोला यस यू कैन बिकम माई सर्वेंट, सो लेट्स गो. जैसे ही वो लोग निकले, फिर अचानक से वुल्फ बहुत डर गया किसी साउंड पे, तो फिर लगा कि बेर आ रहा है वहां पे. बेर से वो डर गया, राइट. वहां पे डॉग को लगा कि अच्छा, बेर इज स्ट्रॉन्गर देन दिस वुल्फ, सो आई शुड बी इन सर्विस विथ हिम, नॉट विद अ वुल्फ. ठीक है, जो स्ट्रॉन्गर होगा मैं उसी के साथ रहूंगा. तो बेर वॉज द वन. ठीक है, फिर वो बेर से पूछा, बेर ने अग्री कर दिया. अब दोनों निकल गए. दे वर इन सर्च ऑफ अ हर्ड ऑफ काउज. ठीक है, काउज की सर्च में वो लोग निकल गए. सडनली दे फाउंड दैट हर्ड, बट अचानक से उन्हें एक बहुत ही हॉरिफिक नॉइज सुनाई देती है, जो कि बहुत ही डरावना साउंड है. वो सुन के काउज जो है वो चारों तरफ भागने लगे, वो बहुत ही ज्यादा आवाज करने लगे. सो व्हाट वाज दैट साउंड ऑफ, ये जानने के लिए वी विल बी कंटिन्यूइंग टुमारो. कल हम लोग इसके हाफ ऑफ द पार्ट को कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में. सो टिल देन जस्ट रिवाइज इट वंस. आप लोग खुद में एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि कल मैम क्लास शुरू होने से पहले एक बार सवाल पूछेगी आपको, जो भी मैम ने पढ़ाया उससे रिलेटेड. तो आप एक बार रिवाइज कर लेना. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द टॉपिक. अगर सीख लिया है सब कुछ अब तक में, तो प्लीज थम्स अप दे दो चैट में, ताकि मैम को समझ में आ जाए वट एवर आई टॉट यू, यू जस्ट गॉट इट. ठीक है, so here I have to remind you once again that let's have an Academy learning app in your phone, because ma'am is going to conduct lots of quizzes over there on the platform. And not only quizzes, there are so many live sessions happening by topmost educators there. आप वहाँ पे जाओ ऐप में, वहाँ पे लाइव सेशंस देखो जो कि अभी फ्री मिल रहे हैं. फ्री वाले सेशंस देखो. अगर आपको लगता है, इफ यू थिंक देयर इज एन एडुकेटर जिसका पढ़ाने का तरीका यू आर लविंग, जस्ट लविंग इट, देन यू शुड गो फॉर सब्सक्रिप्शन. क्योंकि आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो डेफिनेटली आपको इंटरेक्शन, क्विजेज, लीडर बोर्ड, ये सारी चीजें आपको ज्यादा क्वांटिटी में मिलने लगती हैं, राइट. तो आप ये ज्यादा करो. आप सब्सक्रिप्शन ले लो, और उसके लिए आप ऐप ले लो फोन में. ऐप में आपको, ऐप के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा. प्ले स्टोर में जाके आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप ले लो, इंस्टॉल कर लो. देन चूज योर कैटेगरी, फॉर विच कैटेगरी यू वांट द सब्सक्रिप्शन. उसके बाद इट विल बी आस्किंग यू फॉर व्हाट काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन यू आर लुकिंग फॉर, राइट. तो आप प्लस वाले पे क्लिक कर दोगे. प्लस पे क्लिक करते ही गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है. जैसे ही आप क्लिक करोगे, इट विल बी आस्किंग यू कि कितने महीने के लिए आपको चाहिए ये सब्सक्रिप्शन, आपको ज़रूरत क्या है, कितने महीने की, राइट. तो उसमें से आप सिलेक्ट कर लो. तो फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए कि 18 मंथ्स का, तो उस पर आपको क्लिक करना है. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो मंथ्स आपको शो कर रहे हैं, राइट. तो आपको अगर मान लो 18 मंथ्स या 36 मंथ्स कोई भी चाहिए, उसको आप सिलेक्ट कर लो. नाउ अभी आपको पेमेंट करना है. पेमेंट करते टाइम में, इफ यू अप्लाई दिस कोड विच इज गिवन इन रेड हियर ऑन द स्क्रीन, जो आपको रेड में दिया हुआ है, पेमेंट के टाइम पे अगर आप ये कोड अप्लाई करते हो, डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा. चाहे वो किसी भी कैटेगरी के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, डजेंट मैटर. अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, तो आप ये कोड अप्लाई कर दोगे, आपको तुरंत में 10% का ऑफ मिल जाएगा. ठीक है, अब
it's about my channel, जो कि मुझे आपको रिमाइंड करना ही करना है. So here I've started my own channel on YouTube which is named as English Junior Pro, जहाँ पे आपको इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, चाहे वो ग्रामर हो, लिटरेचर हो, वोकैब हो, सारी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं. So please tell your friends, प्लीज टेल योर रिलेटिव्स, एवरीवन, सबको आपको बोलना है कि यहाँ पे आपको क्लासेस हो रहे हैं, आप सबको लाओ, सब्सक्राइब करवाओ, वीडियोस बोलो देखने के लिए, उनसे लाइक करवाओ, एंड देन टेल देम टू शेयर विद एवरीवन. So spread it out everywhere. So now I have to say thank you to everyone, the ones who are watching me, the ones who watched me, listened to me so patiently. So thank you so much. Tomorrow again we are gonna meet. Till then, bye bye. Take care. See you soon. Okay. Bye.